Salute. First of all, congratulations to all the students who have secured their rank in UPSC 2021. Today, we gather here to discuss the cutoff analysis for UPSC Prelims 2021. Right? So, my dear students, first of all, we try to understand the last year cutoff analysis of 2021, and then we try to compare this analysis with previous year's cutoff analysis like 2020 and 2019. From that year, we think that कि पेपर का जो पैटर्न है ओके और जो कट ऑफ आ रहा है वो डे बाय मतलब ईयर ऑन ईयर क्या होता है, कम होते जा रहा है. तो उसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे. मैं अमोल दशपुते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. ठीक है, कल ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है. आज हम इस एनालिसिस को देखेंगे. जो लोग इस साल प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उनके माइंड में भी क्या थॉट रहने चाहिए, कौन से कट ऑफ मार्जिन पे उन्होंने चलना चाहिए, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि हम सोचते कुछ और हो कुछ जाता है. राइट, ये अगर थिंकिंग आपके पास है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है. राइट, सो वी स्टार्ट विथ 2021 cut off analysis. In this we'll see here, okay, it's for 2021. So what is the prelims cut off analysis for all the categories in 2021? We try to understand that. First of all, general category, those who belongs to general category, their cutoff is just 87.54 out of 200. Correct, eh? As you all know, CSAT is qualifying, so it is just 87.54 for general category. Okay, the same cutoff for 18.14 for EWS, economic weaker sections. OBC, for OBC the cutoff is 84.85. For SC it is 75.41. for ST 70.71. Then PWD 1, 2, 3 and 5 category. So these are the some exceptional students, okay, with special provisions. So they have 68, 67.33, 43.9 and 45.80. So overall, if you think that the highest cutoff is for general category and it is 87.54. It is for prelims. Am I right? Now we discuss about the mains cutoff for all other categories, right? So for general category, the mains cutoff is 745. Then for EWS it is 730. OBC it is 707. Then SC it is 700. Again SC and ST both have the same cutoff for mains. Then PWD 1, 2, 3, 4, yeah, we can see here key 668, 712, 388 and 566. PWD 3 category का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है हमेशा, बिकॉज दे आर द पीपल मेंटल इलनेस वगैरह. करेक्ट है, वो पीपल उनके लिए वो रिजर्व सीट होते हैं. करेक्ट है. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या है और मेंस का कट ऑफ क्या है. इन दोनों को देखते हुए हमें एक चीज करनी है कि फाइनल कट ऑफ क्या जाता है हमारा. ओके, सो फाइनल कट ऑफ क्या है हमारा 2021 के लिए, दैट इज 953, 916, 953 फॉर जनरल कैटेगरी, 916 for EWS category. For OBC it is 910. Okay, so this 910 is out of 2025. Okay, so we can think that students क्या कि बिलो 50% अगर आपको है, ओके 50% में नहीं, 50% से नीचे 48-47% आप अगर है मार्क्स स्कोर कर लेते, सो यू विल बी सिक्योर्ड अ रैंक इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. सो ऑन दिस बेसिस we can understand the importance of mains examination and interview in this section. Correct, eh? So for 2021, highest cutoff for prelims is 87.54 and for mains it is 745. Right, dear students? So if you think that 87.54 it just cost you around 42%, 42.5 something. Correct, eh? And for mains again 745 out of 750, it just cost around 43-44%. And for final cutoff including personality test, interview marks, we can see that कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि अराउंड
47-48% मार्क्स लेके बंदा एग्जाम क्लियर कर रहा है। करेक्ट है। अगर यही एनालिसिस हम 2020 के साथ देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि यूपीएससी का 2020 का जो कट ऑफ था फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 92.51। क्या था दोस्तों? 92.51, जो 2021 में कितना हो गया? 87। करेक्ट, 87 पॉइंट समथिंग इज देयर। सो 87, दैट मींस 2020 की तुलना में 2021 का पेपर थोड़ा सा टफ था, कट ऑफ क्या हुआ है? कम हुआ है। करेक्ट है। अगर हम देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 92.51 था, 77.55 ईडब्ल्यूएस का था। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, अब मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूं, आप ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए 80.14 यहाँ पे आया है और यहाँ पे 77.50 था। मतलब ओवरऑल जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कम होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ क्या हुआ है? 2020 की तुलना में 2021 में वो क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। करेक्ट है। नाउ वी कैन सी फॉर ओबीसी इट इज 89.12 और एससी के लिए 74.84, एसटी के लिए 68.71। ओके, पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यूडी, ये 3-4 कैटेगरीज है, आप देख लीजिएगा स्लाइड को पॉज करके। करेक्ट है, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि 87, 92 और 2019 में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे था 98। करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2019 में 98 था, 2020 में 92 था, 2021 में 87 था। क्या 2022 में इससे और नीचे आएगा या फिर इससे आगे पेपर हो सकता है? सो दोस्तों प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल काम है, ये मैं भी नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता है। मतलब कोई नहीं कह सकता कि इस साल कट ऑफ क्या आएगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पेपर कि आप लोग पेपर कैसे दे रहे हो। पेपर अगर आप बहुत सही तरीके से दे रहे हो, विदाउट एनी हेजिटेशन दे रहे हो, कोई अगर आपको दिक्कत नहीं है, अगर सब क्वेश्चन सबके लिए पेपर टफ जाता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम होगा। पेपर अगर सबके लिए आसान आ गया तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। अगर मैं 2016 की बात करूं तो 2016 में 116 तक कट ऑफ गया हुआ था। सो 116 कहा और 87 कहा। करेक्ट है। तो यू कैन नॉट बी, अगर सेफर साइड आपको खेलना है कि सर सेफर साइड क्या होगा, तो आई विल सजेस्ट यू स्टडी हार्ड, क्रॉस 100 and 110 का जो मेरिट होता है। तो इसमें क्या होगा कि आप दुविधा में नहीं रहेंगे कि सर मुझे प्री के लिए प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। अदरवाइज क्या होता है, आपके जो 2-4 दोस्त ऐसे होते हैं, मतलब सबके ही होते हैं, जिन्होंने 10-12 इंटरव्यू, 15-20 मेंस लिखे हुए होते हैं। समझ लीजिएगा मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, राइट। सो दे ट्राई टू गाइड यू इन देयर सेंस, तो वो होना नहीं चाहिए। यू मस्ट बी श्योर ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी है तो आपको ही करनी पड़ेगी। नोबडी कैन हेल्प यू। ओके, जो आपके टीचर्स है उनसे आप गाइड ले सकते हो। अगर आप गाइडेंस ले रहे हो तो वो काफी अच्छी चीज है और उसके ऊपर आपको काम भी करना बहुत जरूरी है। मैं अगर 2019 का कट ऑफ यहाँ पे मेंस का देखूं तो 751 था। तो मेंस के कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे 2019, 20, 21 की तुलना में तो 751 करेक्ट है। 751 से आप गए थे 736 और यहाँ पे आए 745। सो अराउंड 750 का कट ऑफ जो है पिछले 3 साल में ये एक सेफर स्कोर था आपका मेंस में। अभी सर 750 कैसे आएगा? करेक्ट है। तो 750 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके 5 पेपर होते हैं, राइट। 750 में 5 पेपर है। अगर आप वहां पे 100 मार्क्स भी स्कोर करते हो ऑन एवरेज तो 500 आपका ऐसे ही बन जाता है। और ऑप्शनल में जनरली कहा जाता है कि 250 मार्क्स तो मतलब स्कोर होने ही चाहिए। सो दैट शुड बी योर 750। सो आराम से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बट उतने भी आराम से नहीं जितना आप सोचते हो, राइट। उसके लिए आपको काफी अच्छी मेहनत, काफी अच्छी प्रैक्टिस और काफी अच्छी गाइडेंस की जरूरत होगी। जो दोस्त अभी प्रीलिम्स देने के बाद उनको अगर कोई डाउट होगा, कोई भी समस्या है, डाक फॉर्म कैसे भरना है प्री के रिजल्ट के बाद, करेक्ट है, अगर ये कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सर ऑप्शनल की बैच कौन सी करनी है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, मैं खुद सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेता हूं। सो कोई भी दिक्कत आपको उस सिलसिले में अगर है तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।